Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor via Newton School, and in this video, that is date 31 of this playlist, data structures and algorithms, we are going to see lowest common ancestor in binary tree. Okay, so हमने already काफ़ी सारी videos data structures and algorithms में देख रखे हैं, that is total 30 videos, and हमने binary trees, binary search trees, heaps सब कुछ पढ़ लिया था. trees data structure में हम आज एक नई वीडियो देखने वाले हैं, that is LCA in binary tree. Okay, before that let's just see what is Newton School. So basically, as we all know, Newton School is an e-learning platform which have different programs especially designed for you. Their first program is pay after placement program, under which you will be teached for 6 months. Okay, they will teach you for 6 months and they will make you a full stack developer, and after that, not only this, they will also get you placed in these companies which they have tie up with. Okay, so what is the most amazing thing about this program is that you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in any of these companies for minimum 5 lakh CTC. Okay, so if you want to know more about this, you can just come to newtonschool.co and you can check their full stack development course which for September batch, and application for that batch is open right now. Okay, so you can just apply. Second thing they have for you is Launchpad initiative. Like if you want to learn or start for free, you can also just go to newtonschool.co and you can check their different courses in which they are giving you free courses, free videos and free content, obviously totally free, and you can also do quizzes there, and you can also participate in coding contests, and you will also get a certificate after the completion of any course. Okay, so you can just go to newtonschool.co and check there these both programs. If you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, you can just go and subscribe this YouTube channel, in which there are different playlists for you, like for DP, for JavaScript, for DSA, and also for C++ basic to advanced. You can just go and check and grab the most out of it. And if you haven't subscribed this channel, just go and subscribe. So in this video we are going to see lowest common ancestor. So पहले हम देखते हैं कि ये होता क्या है exactly, और फिर इसको कैसे हम निकाल सकते हैं. ठीक है, फिर इसका कोड भी देखेंगे. सॉरी, सपोज वी हैव अ ट्री. मैंने एक ट्री बनाया, ठीक है, और ट्री में मैंने बोला 3, 8, 10. मैं यहाँ पे बाइनरी ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ओनली बाइनरी ट्री, नॉट बाइनरी सर्च ट्री, तो कंफ्यूज मत होना. ठीक है, मैंने बनाया 5, देन 2, देन 1, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास था 7 एंड देन 11 एंड देन 20. अगर मैं बोलूँ कि मुझे दो नोड्स गिवन है, दैट इज 1 एंड 20, मुझे इन दोनों नोड्स का LCA चाहिए, दैट इज लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर. ठीक है, तो वो होता क्या है एग्जैक्टली ये देखो. तुम 1 से चले ऊपर की तरफ और 2 से चले ऊपर की तरफ, ठीक है, और तुम यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और रूट की तरफ चलते चले गए. ठीक है, रूट की तरफ चलते चले गए तो तुम्हारा पाथ क्या बना, 1, 2, 8 एंड 3. 20 से तुमने क्या किया, 20 से रूट की तरफ गए तुम, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तुम्हारा पाथ क्या बना, दैट इज 20, 11, 10 एंड 3. तुम सिंपली देखोगे, अगर तुमने यहाँ से लेफ्ट से राइट और लेफ्ट से राइट इटरेट किया, एक नोड पे आके तुम देखोगे कि वो नोड सेम है दोनों के पाथ में. यू कैन कॉल दिस नोड एज लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर. सो बेसिकली LCA होता क्या है एग्जैक्टली, द नोड जहां से तुम लोगों ने इन दोनों नोडों ने, दैट इज 1 एंड 20, ये दोनों डाइवर्ज हुए होंगे, एंड दैट नोड इज राइट नाउ 3. ठीक है, 3 से ये दोनों नोड डाइवर्ज हुए, फिर वो 8 में और एक 10 में, एक 2 में और एक 11 में, एक 1 और एक 20 गया. ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर. ठीक है, अब तुम बोलोगे कि ये तो बहुत ईजी सा था, मैंने सिंपली क्या किया, मैंने 1 लिया, 1 के पेरेंट में गया, उसके पेरेंट में गया, उसके पेरेंट में गया, जब तक मुझे रूट नोड नहीं मिल जाता. फिर मैंने क्या किया, मैंने सिंपली 20 में गया, 20 से उसके पेरेंट, उसके पेरेंट, उसके पेरेंट में, रूट नोड नहीं मिल जाता. फिर मैंने दोनों एरे में इटरेट कर लिया और मैंने सिंपली देख लिया कि जो भी वैल्यू सेम आ रही है वो उन दोनों का LCA हो जाएगा. दैट इज ट्रू, दिस एल्गोरिथम कैन वर्क, बट इसमें होता क्या है, ये जो एल्गोरिथम है ये स्पेस ज़्यादा लेती है. ठीक है, तुम सिंपली क्या कर रहे हो, तुम 2 एरेज बना रहे हो और उसमें पूरा का पूरा पाथ स्टोर कर रहे हो. ठीक है,
तो दैट्स वाई वी हैव अ बेटर एल्गोरिदम, और अब मैं उस एल्गोरिदम को डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। वो एल्गोरिदम में मैं तुम्हें प्रॉपर प्रोसेस बताऊंगा फर्स्टली, ठीक है। मैं तुम्हें एल्गोरिदम एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, और फिर उसके बाद जब हम उसका कोड देखेंगे तो हमें सारे केसेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द रूट नोड, ठीक है। सपोज मुझे लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर चाहिए था 2 का और 11 का, ठीक है, और यू कैन से 1 और 11 का। इसका मुझे एलसीए फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा अपने मेन नोड रूट नोड से। मैंने रूट नोड से स्टार्ट किया, मैं गया सबसे पहले लेफ्ट चाइल्ड मैंने एक्सप्लोर किया उसका, लेफ्ट चाइल्ड में आया, मैंने चेक किया कि वो क्या तुम्हारा 11 या 1 के इक्वल है, नहीं है, ओके। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं अगेन उसके लेफ्ट चाइल्ड में गया, मुझे सारा का सारा जो ट्री है वो सिंपली सर्च आउट करना है, ठीक है। मैं 5 में गया, मैंने 5 चेक किया, 5 1 और 11 के इक्वल है, नहीं है। मैं सिंपली क्या करूँगा, उसका कोई भी लेफ्ट चाइल्ड या राइट चाइल्ड नहीं है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से नल रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। दैट इज देयर इज नो चाइल्ड फॉर 5, ठीक है, ओके। अब 8 में मेरे पास एक वैल्यू नल है, ओके। राइट नाउ 8 में 1 वैल्यू इज नल। अब मैं क्या करूंगा, 8 में आया, 8 का राइट चाइल्ड मैंने देखा अभी अनएक्सप्लोर्ड है, मैं 8 के राइट चाइल्ड में गया, मैंने देखा 2 मैंने चेक किया 1 या 11 के इक्वल है, नहीं है। मैं सिंपली क्या करूंगा, 2 के लेफ्ट चाइल्ड में जाऊंगा, 2 के लेफ्ट चाइल्ड में आया 1, मुझे एक चाइल्ड मिल गया 1, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 1, तो 1 मुझे मिल गया। तो मैं अब सिंपली यहाँ से क्या करूँगा, जैसे ही मुझे 1 मिला मैं यहाँ से रिटर्न बैक कर जाऊँगा, और रिटर्न बैक करके क्या वैल्यू रिटर्न कर दूंगा, 1। अब मेरे पास 2 के पास एक वैल्यू क्या है, मेरे पास 1, दैट इज 2 नोड में मेरे पास एक वैल्यू 1 है, ओके फाइन। और वो 1 किसकी वैल्यू है, ऑब्वियसली जो नोड का मैं एलसीएस फाइंड आउट कर रहा था। अब मैं 2 के राइट चाइल्ड में जाऊंगा, मुझे 2 का राइट चाइल्ड कुछ नहीं है, तो वो सिंपली क्या रिटर्न हो जाएगा वहां से, नल, और सिंपली कुछ भी नहीं, ठीक है, क्योंकि राइट चाइल्ड है ही नहीं, हमने एक्सप्लोर नहीं किया। तो अब मेरे पास 2 में एक सिंगल वैल्यू है, दैट इज 1, तो मैं सिंपली यहां से क्या करूंगा, 2 से सिंगल वैल्यू 1 रिटर्न कर दूंगा, दैट इज मुझे यहाँ पे एक वैल्यू 1 मिल गई है, ओके। तो जैसे ही 8 में मेरे पास एक 1 और आया, तो अब मैं बोलूंगा कि मेरे पास एग्जैक्टली 8 के करेस्पॉन्डिंग 1 और नल 2 वैल्यूज हैं, ठीक है। अब जब मेरे पास किसी भी नोड में एक कोई सिंगल वैल्यू और एक नल वैल्यू होगी, तो व्हाट आई विल डू इज कि जो वैल्यू मेरे पास है वो सिंपली कौन सी वैल्यू है, वो वैल्यू है जो मैं सर्च कर रहा था, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अब वो वाली वैल्यू रिटर्न कर दूंगा टू द पेरेंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं। मैंने सिंपली क्या किया, 8 में मेरे पास 1 और नल थी, मैंने बोला कि मुझे 1 मिल गया यहाँ पे, ठीक है। मैं तुम्हें ब्रूट प्रॉपर प्रोसेस समझा रहा हूँ, उसके बाद हम कोड भी देखेंगे, हमें और अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने बोला 3 को मैंने अपने पेरेंट को बताया कि मुझे 1 यहाँ पे मिल गया ऑलरेडी, ठीक है फाइन। अब मुझे 11 और ढूंढना है, मैं सिंपली क्या करूँगा, लेफ्ट पार्ट इसका सर्च आउट हो गया, मैं सिंपली जाऊँगा राइट में गया, मैंने देखा 10, 11 और 1 के इक्वल नहीं है, मैंने बोला और नीचे आओ, और नीचे आया, मैंने देखा 11 लेफ्ट चाइल्ड में, यस मुझे 11 मिल गया। मुझे क्या इसके नीचे सर्च करने की ज़रूरत है, नो, आई विल सिंपली रिटर्न 11 फ्रॉम हेयर। तो अब 10 को मैंने बता दिया कि मुझे 11 मिल गया, ठीक है। मैं सिंपली क्या करूँगा, राइट चाइल्ड में गया, ठीक है, राइट चाइल्ड में मैंने देखा 7, 11 और 1 के इक्वल नहीं है, ठीक है। मैंने उसके चाइल्ड एक भी नहीं है, मैंने क्या किया, सिंपली यहाँ से नल रिटर्न कर दिया। अब मेरे पास 10 के करेस्पॉन्डिंग 2 वैल्यूज हैं, 10 को पता है कि मुझे 11 और नल 2 वैल्यूज मिली हैं, ठीक है। तो 10 सिंपली क्या करेगा, अपने पेरेंट को बता देगा कि एक वैल्यू तो 11 थी, उसका कोई यूज नहीं है, दूसरी वैल्यू मुझे क्या मिली यहाँ पे, दैट इज 11, तो उसने बोल दिया कि मुझे 11 यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और 1 ऑलरेडी 3 के पास था, तो अब 3 को क्या पता चला कि मुझे 1 और 11 दोनों मिल चुका है, ओके। तो 3 का कोई पेरेंट है जिसको उसे बताना है, ऑब्वियसली नो। तो व्हाट 3 विल डू, 3 विल से कि मुझे 11 और 1 मेरे पास मिल गया,
मैं अब क्या हूं, इन दोनों का LCA, मैं ही इन दोनों का LCA हूं, ठीक है। तो सिंपली मुझे पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। 1 और 11 का LCA क्या हो गया, सिंपली 3। ओके फाइन। तो ये था मेरा कंप्लीट प्रोसेस जब मैंने रूट नोड से स्टार्ट किया और मैंने सारे नोड्स सर्च किए और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगा। क्या मुझे कहीं भी एक्स्ट्रा स्पेस लगा? नहीं, ठीक है। तो इन दिस वे वी कैन सर्च होल ट्री और मैं LCS फाइंड आउट कर सकता हूं। अब मुझे क्या देखना है, इसका कोड, ठीक है। इसका कोड बहुत इजी होता है एंड वी विल सी दैट कोड इन पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, ठीक है, इन द सेम प्लेलिस्ट tomorrow. Okay, so thank you guys for watching this video. If you haven't subscribed this YouTube channel, that is Code Kitchen Newton School, just go and subscribe this channel. और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, LCA के कुछ और अच्छे 2 एग्जाम्पल और इसका कोड देखेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। Just go to newtonschool.co and check their pay after placement program and launchpad initiative. And if you have any doubt, you can just ask me in comment section. Thank you guys.